का की प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, क्योंकि फिज़िकल एजुकेशन इज़ ऑल अबाउट आवर बॉडीली फंक्शंस एंड मेंटल फंक्शंस। तो जिस भी तरीके के हमारे सिस्टम्स होते हैं इन फिज़िकल एक्टिविटीज़, हमारे बॉडी सिस्टम्स का पता होना बहुत ज़रूरी है। गुड इंस्टीट्यूशंस, हमें पता होना चाहिए कि कौन से इंस्टीट्यूशंस हमें प्रॉपर नॉलेज दे सकते हैं, या कौन से इंस्टीट्यूशंस ऐसे हैं जो अफिलिएटेड हैं विद मच हायर अथॉरिटीज़, जो जल्दी नज़र में आए, जिससे जल्दी हमें प्रमोशन मिले, डेवलपमेंट मिले। ऑल्सो अबाउट पोस्चर, नाउ पोस्चर की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज एनी स्पोर्ट्स पर्सन विद अ बैड पोस्चर कांट बी अ स्पोर्ट्स पर्सन। हमारे पोस्चर्स में सही होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इट विल लीड टू अ गुड पर्सनैलिटी, गुड हेल्थ, गुड शो टू पीपल हु कैन नो दैट यू आर अ गुड स्पोर्ट्स पर्सन. After knowing about the soft skills that we need to lead in the career of physical education, we must also know about different sports tournaments. First of all, Olympic Games. Now, Olympic Games is already a very big name, so one must know that Olympic Games are held every 4 years, and Olympic Games are the highest of all the games in all the tournaments in the world. Secondly, we have World Cups and Championships. These World Cup and Championships are held every year from different countries, in different countries, by different countries, and there is no limit to who can participate and who can't participate into World Championships. Then we have Commonwealth Games. Now, Commonwealth Games again are held in 4 years, and British ruled nations are the only countries which can take part in Commonwealth Game. यानी जिस पर भी हमारे ब्रिटिश रूल था, जिस पर भी ब्रिटिश हम पर राज कर गए थे, सिर्फ वही नेशंस ऐसे हैं जो कॉमनवेल्थ गेम्स में पार्ट ले सकते हैं. एशियन गेम्स हैं, हर साल होते हैं. ऑल्सो ओनली द एशियन countries can take part in the Asian Games. Then national championships and state and district level championships, university championships and school championships, एक junior या lower level of championships होते हैं, जो in taking participation and building in a very good sports and physical life is not such a low level. ये हमारा एक बेसिक लेवल होता है जिससे हमारी स्टार्ट होती है ऑफ द करियर इन फिज़िकल एजुकेशन. स्कूल चैम्पियनशिप्स हमें हेल्प करती हैं इन बिल्डिंग इनटू आवरसेल्व्स कि हम क्या हैं. सो फर्स्ट व्हेन वी स्टार्ट फ्रॉम द स्कूल चैम्पियनशिप्स, देन ओनली वी गो टू यूनिवर्सिटी चैम्पियनशिप्स. Only after winning out university championships we go through state and district levels. So these all are the levels which can finally lead us to the Olympic Games. So taking part into them and being good in your performance will lead you to the Olympic Games and higher than that, if possible. Khelo India program is one of the programs started by Ministry of Youth Affairs and Sports in India. Now, the Khelo India Games were first held in Delhi, and the main thing that we should know about Khelo India program, that it is a talent hunt or a talent search. People or children who have talent in sports and in different sports, any sports which we are hunting talent from, when children or any student या किसी भी बच्चे का जब कोई मेडल आता है in any of the Khelo India Games, तो वो दे दिया जाता है उनकी स्टेट साइड को, एंड द चाइल्ड इज़ गिवन स्कॉलरशिप एवरी ईयर so that the child can grow in his educational and physical activities. Now, the Khelo India program has been introduced to revive the sports culture in India at the grassroots level by building a strong framework for all sports played in our country and establish India as a great sporting nation. The objectives of Khelo India are to build a team spirit, जिससे भी जो भी कोई टीम स्पिरिट को बिल्ड करने के लिए हमारे पास एक टीम गेम होना ज़रूरी है. सो खेलो इंडिया हैज़ इंक्लूडेड एवरी काइंड ऑफ टीम गेम विच दे कैन हेल्प प्रोवाइड टू चिल्ड्रन किसी भी तरीके की स्ट्रेटेजिक और एनालिटिकल थिंकिंग को बिल्डअप करने के लिए, ताकि बच्चे एक अच्छा स्पोर्ट्स पर्सन बन सके. उसके लिए टू ऑल्सो डेवलप लीडरशिप स्किल्स इन चिल्ड्रन. लीडरशिप स्किल्स का होना बहुत ज़रूरी है ताकि आप खुद अपने गेम को और अपनी टीम को लीड कर सकें.
गोल सेटिंग्स के लिए बहुत ज़रूरी है। गोल सेटिंग्स इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब हम छोटे एक ग्रास रूट लेवल पर गोल सेट करना शुरू करेंगे, ओनली देन वी कैन लीड टू हायर गोल्स। ऑल्सो रिस्क टेकिंग एबिलिटीज़ ऑफ चिल्ड्रन। अब रिस्क टेकिंग इसलिए क्योंकि कई बार बच्चों को डर लगता है कुछ गेम खेलने में या बाहर आने में या सामने आने में या किसी भी तरीके का अपने ही गेम में रिस्क लेने में। बट रिस्क टेकिंग इज़ इम्पोर्टेंट इन फिजिकल एजुकेशन सो दैट यू कैन एक्सप्लोर मोर ऑफ द रेल्म इन योर ओन गेम। अब रिस्क टेकिंग जब तक नहीं होता है तब तक बच्चे नहीं समझ पाते हैं कि हमारा गेम हमें और क्या ऑफर करता है। Objectives of Khelo India are playfield development. Now, playfield development is to find the possible areas for development of standardized and safe playfields. प्लेफील्ड डेवलपमेंट का मतलब है कि हम जिस भी तरीके का हम स्पोर्ट्स खेल रहे हैं उस तरीके की हमारे पास एक प्ले फील्ड होना बहुत ज़रूरी है। जब तक हमारे पास प्ले फील्ड नहीं होता है हमारी जो स्पोर्ट्स है वो ढंग से नहीं खेला जाता है। सो टू फाइंड आउट व्हाट काइंड ऑफ प्ले फील्ड वी नीड एंड व्हाट काइंड ऑफ प्ले फील्ड एनी स्पोर्ट्स विल नीड, दिस इज़ इम्पोर्टेंट टू नो अबाउट द प्ले फील्ड्स। Community coaching development is another objectives of Khelo India. It is to provide sports coaching for community from experienced players. अब हमारे पास जितने भी एक्सपीरियंस्ड प्लेयर्स हैं जो एक्सपीरियंस कर चुके हैं वो स्पोर्ट्स खेलना, उससे हमें पता चलता है, उनसे हम उनके एक्सपीरियंस से एंड उनके खेलने के तरीके से हम हमारे आने वाली जनरेशन को एक ग्रास रूट लेवल पर ही समझा सकते हैं, बता सकते हैं कि कैसे क्या होता है या कैसे कोई चीज़ को लीड करना है या कैसे किसी चीज़ को खेलना है। Another one is state level Khelo India centers. It also helps in developing the sports hub centers at state level. अब हर स्टेट पर कोई स्पोर्ट्स लेवल हब होगा जिससे हर बच्चे को हर तरीके की फैसिलिटी मिलेगी, हर तरीके की एक एनकरेजमेंट होगा उनके लिए किसी भी स्पोर्ट्स में खेलना या जाना, एक इजी एक्सेस मिल जाएगा उन्हें टुवर्ड्स एनी स्पोर्ट्स। Annual sports competitions is also to encourage and promote sports competitions for players. जब तक हमारे पास नए competitions नहीं होंगे, नए tournaments नहीं होंगे, तब तक बच्चों पर में एक खेलने की इच्छा नहीं बनेगी. So to make them more obsessive or to make them more interested in sports, we need to build out different competitions for players. So in the end, we can say that physical education will help in an overall development of a personality, be it physical, emotional, mental and psychological.